السلام علیکم ناظرین، دکن ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سنبل میں فائرنگ واقعے کے ذمہ دار عہدیداروں کو معطل کیا جائے۔ برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کیا مطالبہ۔ اڈانی کے خلاف پارٹی قیادت کی برہمی کے پیش نظر تلنگانہ حکومت نے اسکل یونیورسٹی کی 100 کروڑ کی امداد کو کیا مسترد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کمپنی کو لکھا مکتوب۔ ریونت ریڈی غریبوں کے لیے نہیں، اڈانی اپنے بھائی اور داماد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محبوب آباد میں دھرنے سے کے ٹی آر کا خطاب۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نے سیکریٹریٹ میں بجلی کے شعبے پر منعقد کیا اہم اجلاس۔ ریاست میں شمسی توانائی کی پیداوار کو فروغ پر کیا تبادلہ خیال۔ عادل آباد ضلع جینت منڈل میں پیش آیا خوفناک سڑک حادثہ۔ آرٹیسی بس نے موٹر سائیکل کو دی ٹکر۔ حادثے میں ایک بزرگ اور ایک معصوم کی موقع پر ہی ہوئی موت، ایک اور معصوم ہوا شدید زخمی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سنبھل میں پولیس فائرنگ واقعے میں ہوئی اموات کی شدید مذمت کی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا ہے کہ سنبھل کی جامع مسجد 50 یا 100 سال نہیں بلکہ 250 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ عدالت نے مسجد کمیٹی کے موقف کی سماعت کیے بغیر سروے کے احکام جاری کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے سروے کے لیے کسی کو اطلاع نہیں دی گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مسجد کمیٹی کو اعتماد میں لیں، لیکن پولیس نے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ سروے کے لیے آنے والے افراد نے اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ تشدد میں 3 مسلمان گولی لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ یہ فائرنگ نہیں بلکہ قتل ہے، اور جو بھی فائرنگ کے ذمہ دار عہدیدار انہیں معطل کیا جائے اور ہائی کورٹ کے برسر خدمت جج کے ذریعے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سنبھل میں ظلم کیا جا رہا ہے۔ جب سے بابری مسجد کا فیصلہ آیا وہ مسلسل اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ایسے کئی تنازعات کھلتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں سنبھل واقعے پر مباحث کے لیے نوٹس بھی دی تھی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پیر کے دن وقت ترمیمی بل سے متعلق تشکیل دی گئی پارلیمانی مشترکہ کمیٹی کے اپوزیشن ارکان کی اسپیکر سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے کمیٹی کی میعاد میں توسیع کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ وقف بل قانون میں ترمیم ہوگا تو سنبھل کے جیسے واقعات پیش آئیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنبھل کی چنڈوسی کی جو جامع مسجد ہے وہ کوئی 50 سال 100 سال نہیں بلکہ 200-250 سال پرانی مسجد ہے، اس سے زیادہ ہے۔ وہاں پر کورٹ کی طرف سے بغیر مسجد کے ذمہ داروں کو کمیٹی کو سنے انہوں نے ایک ایکس پارٹی آرڈر پاس کر دیا، وہ غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بار تو آپ نے غلط آرڈر دیا، سروے ہو گیا، دوسرا سروے جب کیا آپ نے کسی اطلاع نہیں دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ پولیس کا یہ کام تھا کہ مسجد کمیٹی کو کانفیڈنس میں لیتے یا وہاں کی پیس کمیٹی کو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو سروے کرنے لوگ آ رہے وہ پرووکیٹو سلوگنز لگا کر آ رہے ہیں، وہ ویڈیو اس کا ہے، پبلک ڈومین میں ہے۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر وائلنس ہوا جس میں مسلمانوں کو گولی لگی، ان کی موت ہوئی، ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ فائرنگ نہیں بلکہ مرڈر ہے۔ اور جب سے بابری مسجد رام مندر کا ججمنٹ آیا، جس بات کو میں پرٹیکولرلی کہہ رہا ہوں کہ اس ججمنٹ کے بعد یہ سب چیزیں کھلیں گی اور ایک کے بعد ایک کھل رہی ہیں۔ اے ایس آئی پروٹیکٹڈ مانیومنٹ سب باتیں کر رہے ہیں، کیا اے ایس آئی کے قانون میں نہیں ہے کہ آپ اس کا ریلیجیس نیچر چینج نہیں، کیریکٹر چینج نہیں کر سکتے؟ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں یہ؟ اور آپ کس بنیاد پر اپنے فیتھ کو دوسروں پہ تھوپیں گے؟ بھائی قانون کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ جس دن کورٹ میں سنوائی ہوتی ہے اسی دن آرڈر ہو جاتا ہے، اس دن سروے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو 1948 میں ایسے ہی ہوتا ہے بابری مسجد میں۔ تو یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ فائرنگ نہیں ہے، مرڈر ہے، اور جو بھی آفیسرز انوالو ہیں ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے اور ایک سٹنگ ہائی کورٹ جج سے اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ سراسر غلط ہے، ظلم ہو رہا ہے وہاں پر تو سنبھل میں۔
कौमी सतह पर अदानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस पार्टी की मुसलसल तनकीदों के बायस तेलंगाना की हुकूमत ने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अदानी कंपनी की तरफ से दिए गए 100 करोड़ रुपए की इमदाद को मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इन्होंने इस सिलसिले में अदानी ग्रुप को मकतूब रवाना किया है और स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए की इमदाद ना देने की दरख्वास्त की है। रेवंत रेड्डी ने मीडिया और अपोजिशन से भी अपील की है कि गैर ज़रूरी तनाज़ात को खड़ा ना किया जाए। दिल्ली के अपने दौरे से मुताल्लिक़ वज़ीर आला ने वजाहत की कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की दुख्तर की शादी के सिलसिले में वो दिल्ली जा रहे हैं। अदानी कंपनी पर अमेरिकी महकमा इंसाफ की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामा किया गया था। कांग्रेस पार्टी का मुतालबा है कि पार्लियामेंट में अदानी पर लगाए गए इल्ज़ामात पर मुबाहिस किए जाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की हुकूमत अपनी रियासत की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। कोशिश कर रहा है तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के, तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशंस फेस करने का जरूरत नहीं है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि अदानी अपने दामाद, अपने भाई और पार्टी आला क़यादत के लिए काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को गरीबों की कोई फिक्र नहीं, अपने दामाद के लिए गरीबों की ज़मीन हड़पी जा रही है। केटीआर ने कहा है कि मुल्क में किसानों की ताकत के आगे वज़ीर आज़म मोदी को भी झुकना पड़ा था, ये किसानों की ताकत है। रेवंत रेड्डी इख्तिदार में आने से लेकर अब तक 28 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन 28 रुपये भी दिल्ली से फंड लाने में नाकाम रहे। इन्होंने कहा है कि आज रेवंत रेड्डी कोड़ंगल जाने के मौक़िफ़ में नहीं हैं और उन्हें पता है कि कोड़ंगल में उन्हें ज़बरदस्त अवामी बरहमी का सामना करना पड़ेगा। ముఖ్యమంత్రి నువ్వు మా ఓట్లతో గెలిచినావు, మా మాట విను, ఈ నిర్ణయం మార్చుకో అని చెప్పిండ్రు. కానీ 9 నెలలకెళ్ళి ముఖ్యమంత్రికి టైం దొరకలేదు, ముఖ్యమంత్రికి సమయం దొరకలేదు. సొంత నియోజకవర్గంలో ఓటేసి గెలిపించిన అక్కడి ఆడబిడ్డలు, గిరిజన ఆడబిడ్డలను కానీ అక్కడ ఉన్న దళిత అన్నదమ్ములను కానీ కలుసుకునే టైం ముఖ్యమంత్రికి లేదు. ఎక్కే విమానం, దిగే విమానం, ఢిల్లీకి పోవాలి రావాలి, 28 సార్లు పోయిండు, 28 రూపాయలు కూడా తేలేకపోయిండు. అట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు సొంత నియోజకవర్గంలోనే ఈరోజు తిరుగుబాటును ఎదుర్కొంటా ఉన్నాడు. మొన్న జరిగింది అధికారులకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసన ప్రదర్శన కాదు, అధికారులు పోతే నిరసన వ్యక్తం చేసిండ్రు. అదే రేవంత్ రెడ్డి పోతే ఉరికిచ్చి కొట్టేటోళ్ళు మొన్న మా గిరిజన అన్నదమ్ములు. ఇది వాస్తవం. नलगुंडा जिले में टीआर पार्टी के दफ्तर में पार्टी के कायदीन और कारकुनों का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी लीडर व साबिक जेडपी चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि जारिया माह की 29 तारीख को नलगुंडा में बीआरएस पार्टी की जानिब से दीक्षा दिवस मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें अवामी नुमाइंदे, साबिक अवामी नुमाइंदे, पार्टी कायदीन शिरकत करेंगे। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर ज़िले मरकज़ में वाक़ भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर में 29 नवंबर को मुनक्किद होने वाली दीक्षा दिवस की तैयारियों का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में साबिक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर गौड़, साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन के.सी. नरसिम्हलू और दीगर मौजूद थे। विकाराबाद ज़िले डीडीसी सदर परगी एमएलए डॉक्टर टी राम मोहन रेड्डी ने परकी म्यूनिसिपैलिटी में हर घर को पीने का पानी फराहम करने के लिए अमृत 2.0 स्कीम के हिस्से के तौर पर मटागुडुरु गांव में 10 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले पानी के टैंक की तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इसी तरह इन्होंने मुकामी कायदीन के साथ 13वीं वार्ड वेंकटेश्वर कॉलोनी में 100 करोड़ 30 लाख की लागत से 10वें वार्ड श्रीनिवासा कॉलोनी में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले पानी के टैंक का संग बुनियाद रखा।
निजामाबाद ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि प्रजावानी में दर्ज होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाए। इन्होंने ज़िले कलेक्टर कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ज़िले भर से आई 95 शिकायत का इजाला भी किया। जगतियाल ज़िले धर्मपुरी मंडल के आरेपल्ली ज़िले परिषद हाई स्कूल में दोपहर के खाने के मियार पर तनाज़ा पैदा हो गया। तलबा और उनके वालिदैन ने दोपहर के खाने में गैर मियारी ग़िज़ा फराहम करने पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर स्कूली तलबा और वालिदैन ने जगतियाल प्रजावानी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। नलगुंडा ज़िले कलेक्टर ने ज़िले हेडक्वार्टर में देवरा गोंडारू रोड पर वाक़े महात्मा ज्योति बा फुले गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का अचानक मुआयना किया। इन्होंने स्कूल के किचन, डाइनिंग हॉल, खेल के मैदान और क्लासरूम्स का मुआयना किया और तालिबात और बावर्चियों से भी बातचीत की। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने कहा कि तलबा को साफ़ सुथरा और मियारी खाना फराहम किया जाए। इन्होंने कहा कि किचन को साफ़ सुथरा रखने के लिए खाना पकाने के बाद खाना पकाने के बर्तनों को साफ़ करते हुए किसी साफ़ जगह पर रखा जाए। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सेक्रेटरीट में बिजली के शोबे पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। रियासत में शमसी तवानाई की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए किए गए इक़दामात पर सीएम चंद्रबाबू ने अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म सूर्या घर स्कीम के तहत और सरकारी दफातर में शमसी तवानाई के आलात की तनसीब के मनसूबे पर भी जायज़ा लिया। एससी और एसटी तबक़ात के घरों में शमसी तवानाई की सहूलत फराहम करने के बारे में वज़ीर आला ने अफसरान से मशवरा किया और कई अहम हिदायत जारी की। इस इजलास में स्कीम और शमसी गाँव जैसे मौज़ूआत पर बहस हुई। हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई की फराहमी के लिए कुप्पम असम्बली हल्के को बतौर पायलट प्रोजेक्ट मुंतखब किया है। आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला इमदादी फ़ंड के लिए मुख्तलिफ अतिया दहिंदगान ने चंदा फराहम किया है। इन्होंने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के दौरान चेक हवाले किया। नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट कौंसिल के रियासती सदर चक्राधर, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और दीगर ने 75 लाख रुपए अतिया किए। एपी होटल एसोसिएशन के अरकान ने 25 लाख रुपए का चेक पेश किया, जबकि रायदुर्ग असम्बली हल्के की डवाकर ख़वातीन तंजीमों ने गवर्नमेंट वीप के साथ मिलकर 9 लाख रुपए का अतिया दिया है। अनंतपुर में पीएम इंटर्नशिप आगाही प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में महकमा सेहत के वज़ीर सेहत कुमार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर ने पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत फराहम किए गए मौक़े पर रोशनी डाली। इन्होंने बताया कि इस स्कीम के ज़रिए अब तक 79 लाख अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम किए गए हैं। वज़ीर ने कहा है कि तलबा को अपनी तालीमी ज़िंदगी के दौरान ही रोज़गार के मौक़े के बारे में आगाही हासिल करनी चाहिए ताकि वो अपने मुस्तक़बिल को बेहतर तरीक़े से संवार सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रियासती कमेटी के इजलास के दौरान मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में पोलिट ब्यूरो के रुकन BV राघवलू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अडानी रिश्वत का केस एक बैनुल-अक़वामी स्कैंडल है। इन्होंने कहा है कि जब वज़ीर आज़म मोदी ने सियासत में बदउनवानी ख़त्म करने का ऐलान किया था तभी ये स्कैंडल हुआ। इन्होंने मुतालबा किया कि इस केस में अडानी के साथ साथ वाईएस जगन की भी तहक़ीक़ात की जाएँ और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत छोटे मामलात में ED और CBI का इस्तेमाल करती है, लेकिन इतने बड़े बदउनवानी के मामले पर अभी तक कोई रद्द अमल नहीं दिया है। विशाखा मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर TDP स्टूडेंट विंग ने TNSF के रियासती सदर
ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इन्होंने आज विशाखापट्टनम में बतौर चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए एक आम कारकुन के तौर पर साइकिल पर VMRDA के दफ्तर पहुंचे। इन्होंने TDP के इंतखाबी निशान साइकिल पर आकर पार्टी की जानिब से उन पर किए गए एतमाद का शुक्रिया अदा किया। विशाखापट्टनम ज़िले भेमिली मंडल के मुजिला सा गाँव में एक नौजवान लड़की को आशिक मिजाज नौजवान की जानिब से हरासानी किए जाने पर मुतासरा लड़की ने खुदकुशी कर ली। विशाखापट्टनम में यह वाक़या ताख़ीर से सामने आया। तफसीलात के मुताबिक गीताला राशि, जो डिग्री तक तालीम हासिल कर चुकी थी, मुकामी ZP हाई स्कूल में एजुकेशन वॉलंटियर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। इसी गांव के रहने वाले पल्ली राजू नामी नौजवान ने कई सालों से मोहब्बत के नाम पर इसे हरासा किया था और इसकी हरासानियों से तंग आकर लड़की ने 16 तारीख की शाम अपने घर में रखी कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना ने इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन इलाज के दौरान वो जान की बाजी हार गई। आंध्र प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के मुलाजिमीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाने की तैयारी कर ली है। इन्होंने AP हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात फौरी तौर पर पूरे ना किए गए तो आधी रात से हड़ताल शुरू कर देंगे। इन्होंने ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों, मुलाजिमीन की सलामती और दीगर मुतालबात की तकमील के लिए विजयवाड़ा के धरना चौक पर भूख हड़ताल शुरू की है। इस मौके पर 108 मुलाजिमीन ने कहा है कि हम हुकूमत के अपने मुतालबात पूरे करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमने पहले ही हुकूमत को नोटिस दे दी है। अनंतपुर ज़िले ओरावा गुंडा मंडल में मौजूद कैनरा बैंक के ATM में पीर के रोज़ एक किसान को नकदी निकालने के दौरान एक शख्स ने ठग लिया और किसान के अकाउंट से भारी रकम निकाल ली। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा किसान ATM से रकम निकालने की कोशिश कर रहा था, ताहम ATM कार्ड के इस्तेमाल के तरीक़े से नावाकिफ़ होने की वजह से वो परेशान खड़ा था। इसी दौरान एक चोर ने इसकी मदद करने का बहाना करते हुए इसे यकीन दिलाया कि वो इसकी मदद करेगा और उसने किसान से पिन दाखिल करवाया और इसे एक नकली कार्ड देकर फ़रार हो गया। कुछ देर बाद किसान को 75,000 रुपये निकाले जाने का पैगाम मिला, जिससे किसान परेशान हो गया और फ़ौरन पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। ज़िले आदिलाबाद जयंत मंडल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक बुजुर्ग शख्स और एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और एक मासूम शदीद ज़ख्मी हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आदिलाबाद से चंद्रपुर जाने वाली RTC बस ने निराला जयंत के दरमियान हनुमान मंदिर के करीब सामने से आने वाली एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग शख्स और एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और एक मासूम शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त आदिलाबाद के महल्ले खानापुर के 58 साला शेख अली और 4 साला अजहान के तौर पर की गई, जबकि ज़ख्मी 5 साला अरहान को इलाज के लिए आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। गढ़वाल ज़िले मरकज़ में पुरानी सब्ज़ी मंडी में वाक़े एक सोने की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से सोने की दुकान के मालिक को तकरीबन 10 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलने पर फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। संभल में फायरिंग वाक़े के जिम्मेदार अहदेदारों को मुअत्तल किया जाए, बरसर खिदमत जज के जरिए तहक़ीक़ात का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन वसी ने किया मुतालबा। अदानी के खिलाफ पार्टी क़यादत की बरहमी के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट यूनिवर्सिटी की 100 करोड़ की इमदाद को किया मुस्तरद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कंपनी को लिखा मकतूब। रेवंत रेड्डी गरीबों के लिए नहीं, अदानी अपने भाई और दामाद के लिए काम कर रहे हैं। महबूबाबाद में धरने से KTR का खिताब।
وزیر اعلیٰ چندر بابو نے سیکریٹریٹ میں بجلی کے شعبے پر منعقد کیا اہم اجلاس، ریاست میں شمسی توانائی کی پیداوار کو فروغ پر کیا تبادلہ خیال۔ عادل آباد ضلع جینت منڈل میں پیش آیا خوفناک سڑک حادثہ، آرٹیسی بس نے موٹر سائیکل کو دی ٹکر، حادثے میں ایک بزرگ اور ایک معصوم کی ہوئی موت۔ اسی کے ساتھ دکن ڈائری اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔